Good evening, friends. This is Orissa IAS Academy. I am your English faculty, Priyanka ma'am. So today we are going to learn about the English syllabus. So we have many sections like mathematics, reasoning, English, current affairs. Along with that, history thoda rehte hai. Chemistry part is also there. So as per my subject, as English is my subject, one thing I can say that I am going to mend you, or I am going to guide you in your subject. Okay, so guiding for this subject, one thing is important, to know the English syllabus. Okay, so apparently all the syllabi of the all government exams are almost same. So let's start with our English syllabus of all government exams. First things, we are preparing for SSC CGL or NTPC or banking. Under banking comes IBPS and SBI, clerk and PO and RRB. Along with that, RRB and RBI. RRB is regional rural banking and SBI is State Bank of India. So for these two bank exams, we need a certain English syllabus, and for SSC CGL and NTPC, the same English syllabus or pattern they follow. Okay, proceeding to our next slide, we can see that we have our grammar, which is basic part. Okay, so for the basic part, the main part is coming from noun, or we can say the parts of speech. This one is the parts of speech. We know the 8 parts of speech. Among them are noun, pronoun, verb, adjective, adverb, preposition, conjunction and interjection. So among them, which are very important, is noun, after that verb, after that adjective, after that preposition, and after that we can say voice change, narration change is very, very important. So we can say that if we see the question patterns from last previous years, we can see many questions came from verb, mainly from verb, and from voice change, narration change, and many questions came from adjective also, adjective and preposition. So for this basic part, we need some expertise for noun, verb and voice change and narration change. Okay, so why verb is important? One thing I can say, why verb is important? Because so generally we can see that noun is important, along with that verb is also important. Why verb is important? Because if you go for verb, verb is the stem of tense, and tense is the stem of the whole English language. ओके, सो मतलब मेरा कहना यही है, अगर आप जब इंग्लिश का सिलेबस कवर कर रहे हो तो उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट हमारा रहता है नाउन, उसके बाद आता है वर्ब, आफ्टर दैट एडजेक्टिव, फिर आता है प्रीपोजिशन, फिर आता है हमारा वॉइस चेंज, नरेशन चेंज. यस, देयर आर आल्सो सम इंपॉर्टेंस फॉर कंजंक्शंस, clause, modals. Okay, so modals, these are also important, but very, very important are verb, preposition, adjective, narration change and voice change. ठीक है, so मैं क्या बोल रही थी, verb है टेंस का स्टेम, एंड टेंस है पूरा इंग्लिश लैंग्वेज का स्टेम. तो देखिए,
वर्ब जब हम पढ़ने वाले हैं तो वर्ब में हमारा कुछ कुछ चीज ऐसा होता है, उसमें हमारा जनरली हम लोग बोर्ड में पढ़ चुके हैं कि हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब, फिर रेगुलर वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ये सब पढ़ रहे हैं। पर इसके अलावा भी हमारा कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है फॉर वर्ब एंड फॉर एवरी पार्ट्स ऑफ स्पीच which are not covered in our board syllabus, but the examiners are very much interested to give questions or to put questions from those rules. ठीक है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग वही रूल्स इधर पढ़ेंगे और जानेंगे कि कैसे एप्लीकेशन हमारा होते हैं वर्ब का एंड टेंस का। ओके, और एक चीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज comprehension. Comprehension is very very important. If you are going for comprehension, at least comprehension में हमारा 10 to 15 मार्क्स कैरी होता है, और वही 10 to 15 मार्क्स हमारा जनरली वोकेबुलरी के ऊपर बेस्ड होता है और क्वेश्चन के ऊपर आपका बेस्ड होता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट चलते हैं। ये गया हमारा ग्रामर का बेसिक सिलेबस, पूरा का पूरा बेसिक सिलेबस। इस सिलेबस के ऊपर ही आपका पूरा बेस है, ये इस बेस के ऊपर ही आपको सुपर स्ट्रक्चर बिल्डअप करना है। अच्छा, अब देखिए यही बेस के ऊपर हमारा पैटर्न, सिलेबस का पैटर्न क्या आता है। पैटर्न में हमारा रहता है idiom and phrases which is totally vocabulary based. One word substitution is also vocabulary based. Sentence correction is not vocabulary based, but it is dependent on verb, adjective, preposition and tense. ओके, नेक्स्ट एरर स्पॉटिंग, सेम थिंग, वर्ब के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, इसका डिपेंडेंस रहता है टेंस के ऊपर भी। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स में कभी कभी हमारा वर्ब के ऊपर आ जाता है, कभी कभी हमारा प्रीपोजिशन आ जाता है, और कभी कभी हमारा वोकेबुलरी बेस्ड भी क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं स्पेलिंग करेक्शन। यू अंडरस्टैंड व्हाट इज स्पेलिंग करेक्शन। आपको स्पेलिंग अच्छा से पढ़ना है, फिर आपका स्पेलिंग करेक्शन हो जाएगा। उसके बाद आता है हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। मैंने अभी अभी कॉम्प्रिहेंशन के बारे में बोला। सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, ये भी हमारा वोकेबुलरी के ऊपर बेस है। जितना आप वोकेबुलरी आपका मेमोराइज रहेगा, जितना आप वोकेबुलरी पढ़ोगे, उतना ही आपके लिए ये फायदेमंद रहेगा। नेक्स्ट है हमारा एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। ठीक है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस क्या होता है, मैंने इधर लिखा एक्टिव पैसिव। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस क्या होता है, आपका कुछ चीज एक्टिव वॉइस में जैसे कि रवि प्लेस फुटबॉल ऐसे रहेगा, इसको आपको चेंज करना पड़ेगा, दैट इज फुटबॉल इज प्लेड बाय रवि। इट इज अ वेरी वेरी बेसिक आपको मैं बता रही हूँ, पर इसका भी बहुत सारे एप्लीकेशन रहता है। नॉट ओनली इसका प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस, पास्ट इंडेफिनाइट टेंस के ऊपर रहते हैं, इसके ऊपर हमारा जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फिर आता है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फिर इस परफेक्ट टेंस का भी कंटिन्यूअस टेंस रहता है, जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस आपको पढ़ना पड़ता है। नेक्स्ट है सेंटेंस रीअरेंजमेंट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेंटेंस रीअरेंजमेंट को हम कभी कभी बोलते हैं पैराजम्बलिंग ऑफ वर्ड्स, पैराजम्बलिंग ऑफ सेंटेंसेस। मतलब आपका ऐसे सिक्वेंशियली 1 2 3 4 करके सेंटेंस दिया जाएगा, उसको आपको क्रोनोलॉजिकली उसको आपको सजाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए मैं जनरली रिकमेंड करती हूँ न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए, क्योंकि जितना आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे उतना ही आपके लिए फायदेमंद रहेगा ये सब करने के लिए। लास्ट है सेंटेंस इंप्रूवमेंट। सेंटेंस इंप्रूवमेंट और कुछ भी नहीं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट आपको ऐसे एक दिया जाएगा, जैसे कि दिया गया कि नाइदर द टू बॉयज
आर गिल्टी फॉर दिस जॉब, ठीक है, फॉर दिस थेफ्ट अगर मैं बोलूं तो इधर हम क्या बोल सकते हैं कि नाइदर द टू बॉयज इज गिल्टी फॉर दिस थेफ्ट, ठीक है, और फॉर दिस रॉबरी व्हाट एवर यू कैन से। नाइदर मतलब ऐसे आपको इंप्रूव करना पड़ेगा, कुछ कुछ कभी कभी इडियम्स दे देते हैं, उसको भी संग लेके हम इंप्रूव करते हैं। ओके, चलिए ये गया हमारा पैटर्न है, ये है हमारा सिलेबस का मतलब इसी के ऊपर आपका क्वेश्चन आने वाले हैं और जिसका बेसिक है मैं प्रीवियस स्लाइड में दिखाया वही वाला 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड उसके साथ आते हैं वॉइस चेंज, नरेशन चेंज, कंप्रीहेंशन एंड ऑल्सो देयर आर बैंकिंग में हम ये लोग इंक्लूड कर रहे हैं लेटर राइटिंग इंक्लूडेड है, लेटर लिखना पड़ रहे हैं आप लोगों को, चाहे वो फॉर्मल हो इनफॉर्मल हो, जनरली फॉर्मल के ही ऊपर पे क्वेश्चन आते हैं, तो लेटर राइटिंग भी कैसे लिखते हैं, इसका एप्लीकेशन कैसे कैसे होते हैं, कहाँ कहाँ होते हैं, ये सब हम सब पढ़ने वाले हैं। ओके, प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड लास्टली क्लोज टेस्ट। व्हाट इज अ क्लोज टेस्ट? एक आपको पैराग्राफ दिया जाएगा, ठीक है, उनमें से 5 ऐसे ब्लैंक्स दिया जाएगा, वही पैराग्राफ के हिसाब से आपको वो ब्लैंक्स फिलअप करना पड़ेगा। कैसे आप फिलअप करेंगे? चाहे वो प्रीपोजिशन की हेल्प से कर सकते हैं, चाहे वो उधर जो ऑप्शन आप लोगों को दे चुके हैं उस ऑप्शंस की हेल्प से आपको वो फिलअप करना पड़ेगा। ओके, अच्छा अब देखिए एसएससी सीजीएल टीयर 1 का मैं सिलेबस अभी बता रही हूँ। एसएससी सीजीएल में क्या होते हैं, हमारा 60 मिनट्स का रहता है, इधर टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी होता है, ठीक है, 60 मिनट्स का रहता है हमारा एग्जाम प्रीलिम्स का, उसमें हमारा देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 मार्क्स का रहता है, टोटल मार्क्स में हमारा 200 रहते हैं और क्वेश्चन हमारा 100 रहेगा और इसके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ मिलने वाले हैं 60 मिनट, मतलब 4 सेक्शन को अगर आप 60 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो कितना होगा, 15 मिनट्स फॉर पर सेक्शन। तो आपको इंग्लिश में मिलने वाला है 25 मार्क्स, ठीक है, इधर इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन लिखा हुआ है, कॉम्प्रीहेंशन से ज्यादा अच्छा है, ये पूरा इंग्लिश के ही ऊपर है। कॉम्प्रीहेंशन मतलब ये नहीं सोचना कि सिर्फ एक ऐसे पैराग्राफ आ जाएगा और उसके ऊपर एक क्वेश्चन होगा, ऐसा नहीं है। इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन का मतलब है इधर ग्रामर से पूरा क्वेश्चन आने वाला है, इधर आपका पूरा का पूरा कॉम्प्रीहेंशन बेस भी कोई कभी कभी छोटा छोटा पैराग्राफ पैसेज रहेगा, उनमें से भी आंसर करना पड़ता है, कभी कभी आपका क्लोज टेस्ट रहेगा, उनमें से भी आपको आंसर करना पड़ेगा। ओके, सो हम देख रहे हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस इज 25। अब ये 50 मार्क्स के लिए हमको मिलेंगे सिर्फ 15 मिनट्स और टाइम मैनेजमेंट फॉर दिस 50 मार्क्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 15 मिनट में 50 मार्क्स आपको अटेंड करना पड़ेगा, 15 मिनट में 50 मार्क्स, जो कि आप जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना आप एक्सरसाइज करोगे, उतना ही आपके लिए ये फायदेमंद रहेगा, तब मतलब टाइम मैनेज करने का आपको सुविधा होते रहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज में हम चलते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा एसएससी सीजीएल टीयर 2 का, ठीक है, पेपर 1 का एग्जाम पैटर्न। इनमें आप देख रहे हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन में हमारा 45 क्वेश्चन आने वाले हैं। 45 क्वेश्चन हमारा कितना है, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन एंड जनरल अवेयरनेस, ये दोनों मिला के हमारा 70 क्वेश्चन है। 70 क्वेश्चन में हमारा 3 करके नंबर है, 210 नंबर का हमें सिर्फ 1 घंटे मिलने वाले हैं। और सही बात यही है कि
आप प्रीलिम्स में जो इंग्लिश आप कवर करोगे, मैंने जो बोला ग्रामर का बेसिक, उसी के ऊपर ही सेम टू सेम एसएससी सीजीएल टायर 2 में सेम टू सेम आएगा। क्वेश्चन ज्यादा रहेगा और डिफिकल्टी लेवल थोड़ा बढ़ता है, इतना नहीं कि बहुत कुछ ज्यादा बढ़ गया, इतना नहीं बढ़ता है, थोड़ा बढ़ता है। और उसके लिए आप जितना प्रैक्टिस करोगे उसके लिए उतना ही आपका फायदेमंद रहेगा। ठीक है, तो ये रहा आज का हमारा इंग्लिश सिलेबस के ऊपर टोटल का कि सिलेबस कैसा होगा, पैटर्न कैसा है, कितना टाइम हमको मिलने वाले हैं, हम कैसे प्रिपेयर करेंगे और मेरा क्लास आपको करना पड़ेगा। तब उसके साथ मैं वो भी बताने वालूंगी कि उसमें से हमारा क्या क्या रूल्स है जो हम नहीं जानते हैं, वही रूल्स हम सब पढ़ेंगे और उसके साथ हम आगे बढ़ेंगे और जरूर के जरूर हम एग्जाम क्रैक करेंगे। ओके, थैंक यू।